بلٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے، چین کے نائب وزیر اعظم ہی لن پنگ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا اور کابینہ سے تعارف بھی کروایا ہے۔ جی ہاں، چینی نائب وزیر اعظم خی لی فنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں نے سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی تقریب بھی منعقد کی گئی ہے، جس میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے جائیں گے چینی کمپنیوں کو جنہوں نے سی پیک میں حصہ لیا اور سی پیک کو کامیاب بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا، انہیں ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کا تعارف بھی کرائیں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوگی۔ 3 روزہ یہ دورہ ہے چینی نائب وزیر اعظم کا، اور خی لی فنگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور قیام کریں گے 3 دن تک اسلام آباد میں، اور اسی مناسبت سے اسلام آباد کے اسکولوں میں بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدیق ساجد نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے لے لیتے ہیں۔ صدیق بتائے گا، نمائندہ خصوصی نائب جو وزیر اعظم ہیں جو پہنچ چکے ہیں یہاں پر، ان کی کیا کیا مصروفیات ہوں گی اور تقریب کا بھی اہتمام کیا جائے گا؟ اوور آل شیڈیول بتائیے گا۔ جی بالکل، جو چین کے نائب وزیر اعظم ہیں ہی لن پنگ، وہ پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر کل شام کو اسلام آباد پہنچے تھے۔ آج سے ان کی باضابطہ مصروفیات کا آغاز ہو گیا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں کی ہے، جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ وزیر اعظم ان کے اعزاز میں دورانہ بھی دیں گے، اور جب وہاں پر وہ پہنچے تھے تو ان کا خود وزیر اعظم نے مرکزی دروازے پر آ کر استقبال کیا، پھر اپنی کابینہ کے اراکین سے تعارف کرایا، اور بعد میں جو چینی نائب وزیر اعظم انہوں نے اپنی کابینہ کے جو ان کے ساتھ وفد کے اراکین ہیں ان کا تعارف شہباز شریف سے کروایا۔ اس کے بعد 1 on 1 ملاقات ہوئی، اور اس وقت وفود کی سطح کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک تو جو دونوں ممالک کے درمیان سی پیک کا منصوبہ ہے، اس کے 10 سال مکمل ہونے کے اوپر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی، اور اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ سی پیک کے تحت جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو بلا رکاوٹ طے شدہ جو ٹائم آف فریم ہے اس کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم ان کے اعزاز میں ایک ظہرانہ بھی دیں گے، اور پھر ان کی صدر عارف علوی کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ اچھا صدیق، اسلام آباد کے اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی یہ اہمیت کی حامل تو ہے، یہ جو ان کا وزٹ ہے یہاں پر، یہ بتائے گا کہ سی پیک ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ان کا دورہ، اور اس کے کیا نتائج ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس وجہ سے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے کہ جو آج شام کو ایک خصوصی تقریب منعقد ہوگی، اس میں یا تو چینی جو صدر ہیں جو شی جن پنگ وہ خود خطاب کریں گے، یا ان کا ویڈیو میسج جو ہے وہ بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے دکھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد تقریباً یہ پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک ہے، اب یہ $100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اور دیگر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں بھی چین کی جو سرمایہ کاری اور تعاون ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ چین کا تعاون، چین کی سرمایہ کاری، اور 10 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور اسی مناسبت سے تقریب کا بھی اہتمام کیا جائے گا سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر۔ بہت شکریہ صدیق ساجد، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، یقین ہے پاکستان دوبارہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا۔ وہ بینک آف چائنا کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور پاکستان کے درمیان تعاون بھی جاری ہے، ایسا بھی کہا انہوں نے۔ مالی مدد کرنے پر چین کے بھی مشکور ہیں۔ وہ بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ Afghanistan has been through a turbulent phase in the last 1 year, unfortunately, but we have tremendous support starting from the Ministry of Finance from China, Ministry of Foreign Affairs from China, People's Bank of China, and the commercial banks in China. I extend my heartfelt thanks to all these institutions, their heads, and their officials in supporting Pakistan in the difficult times. Alhamdulillah, we are fairly out of that turbulent phase, and we are now moving from stability to. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ 100 انڈیکس 2 سال کے بعد 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ 100 انڈیکس میں 1040 پوائنٹس کا اضافہ بڑا اضافہ ہے۔ اس وقت انڈیکس 48,117 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے
नजीब नाइट से। जी नजीब, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज की? जी, स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज में ही बड़ी तेजी देखी गई और 48,000 की हद जो है 100 इंडेक्स अबूर कर गया। ये तकरीबन 24 माह के बाद ऐसा हुआ है कि 100 इंडेक्स जो है 48,000 की हद तक पहुंचा हो और इसके खास तौर वजूहात वो हैं पेक की कामयाबी के हवाले से चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद, उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी के हवाले से बैरूनी जो सरमायाकारी है ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। जिब्रान सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मवाशी में आए हैं। जनाब बताइए क्या मेजर सबब हैं जिसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है? देखिए तकरीबन 24 माह बाद जो देखा कि आपने जो 48,000 का जो लेवल है, 48,000 का जो लेवल है वो देखा गया है। इसकी जो बुनियादी वजह जो है आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज नायब प्राइम मिनिस्टर की जो आमद है उसमें तवक्को ये की जा रही है कि मुल्क के लिए कोई अच्छे बेहतर फैसला हो सकता है, कोई अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुल्क को। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन फील्ड एग्रीमेंट जो था OGDC और PSO का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं उसमें भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। तो ये दो फैक्टर है जिसके बाद आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट में एक तेजी की जो लहर वो बरकरार रहेगी। मजीद ये कि आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज आता है या डिस्काउंट करते हैं तो मजीद जो मार्केट की तेजी है तेजी के जो नए लेवल आप देखेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होने वाली चीजें हैं वो नायब वज़ीर आज़म की यहाँ आमद, सीपेक के हवाले से जो बातचीत है उसमें फर्दर क्या होता है, उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी में जो बैरूनी सरमायाकारी है वो बड़े सबब हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट 48,000 की हद तक पहुंची। सरमायाकारी में बेहतरी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका नजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। ताजिरों और सनतकारों को स्टेट बैंक से शरह सूद में कमी की तवक्को भी है, जबकि मुआशी तज्ज़ियाकार के मुताबिक शरह सूद में इजाफा या मौजूदा सतह बरकरार रखने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है और मुमकिन तौर पर पॉलिसी में कुछ चेंजिंग्स भी आ सकती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का आज बाकायदा ऐलान भी करेंगे। बाजोड़ वर्कर्स कन्वेंशन में जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई है। तेमरगरा अस्पताल में भी इस वक्त 20 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। उनकी हालत कैसी है, डिटेल्स भी जान लेते हैं। नुमाइंदा बाजोड़ इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? कल बाजोड़ में होने वाले अफसोसनाक वाक़े जो धमाका हुआ था GOI के वर्कर कन्वेंशन में, उस धमाके में मौजूद एनी शाहिद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। तकरीबन 4:13 के ऊपर तकरीबन ऐसे अंदाजे के मुताबिक यही टाइम था जब हमारे बाजोड़ के अमीर हज़रत मौलाना अब्दुल-रशीद साहब वो स्टेज पर आए तो साथियों ने उनके इस्तकबाल के लिए सारे खड़े हो गए। तो जैसे ही नारे शुरू की उसके बाद फ़ौरन बस ब्लास्ट हुआ। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो सारा सब कुछ मेरे इधर आया, यहाँ पे लगा ये जगह पे, और फिर यहाँ पर भी कुछ लगा तो ये जगह जल गई है। हर तरफ चीख व पुकार और आहो बुकाती। जो शुहदा है उनकी तदफीन जो है वो इस वक्त जारी है। जी, कोर कमांडर पेशावर और IGFC बाजोड़ पहुंच चुके हैं। कोर कमांडर और IGFC ने धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत भी की है। जाए वक़्वा का दौरा भी किया गया है। दोनों को कल होने वाले धमाके के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। इब्तदाई तहकीकात जो हुई हैं उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। कोर कमांडर पेशावर और IGFC बाजोड़ पहुँच गए हैं और कोर कमांडर और IGFC ने धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद की अयादत की, जाए वक़्वा का दौरा भी किया। दोनों को कल होने वाले धमाके के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वो ज़ख्मियों से मिले, उन्होंने उनकी अयादत की और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। उनको बताया गया है इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है।
बात करें सानिया बाजोड़ की। PDM और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दुबई में तमाम सियासी मसरूफियात मंसूख कर दी हैं। जल्द ही वो पाकिस्तान रवाना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में अपनी जमात के कायदीन और रहनुमाओं से मुसलसल राब्तों में हैं। गुज़श्ता रोज़ के साने के हवाले से उन्होंने तमाम मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता हफ्ते दुबई के लिए रवाना हुए थे। दुबई में उन्होंने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम मुलाकातें भी करनी थीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि JUI कारकुनान पुरअमन रहें। फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले सानह बाजोड़ के पेश नज़र अपनी तमाम तर सियासी मसरूफियात मनसूख कर दी हैं और उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया है। बुलेटिन में बात करेंगे रेगरा वज़ीर आज़म के हवाले से, जिसके तकर्रुर के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज शाम को होगा, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी अपोजिशन अरकान का इजलास बुध को बुला लिया है। पीपल्स पार्टी आज अपने नाम नून लीग से शेयर करेगी, जबकि इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। इस हवाले से मुशावरत का एक और दौर आज शाम को होगा। दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा ये दौर। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है। कौन कौन से नाम ज़ेर गौर हैं? जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये 5वां दौर होगा मुज़ाकरात का। आज शाम को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की रिहाइशगाह पर फिर बातचीत होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नून लीग ने जो 5 नाम दिए हैं उसके बाद पीपल्स पार्टी आज अपने नाम जो है वो देगी। नामों को अभी इस वजह से वो खुफिया रख रहे हैं ताकि किसी इन 5 में जो नाम हैं इनमें से किसी एक पर इत्तेफाक राय हो जाए और ये इसी हफ्ते जो है इस चीज़ को जो है मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उन्होंने भी मशावरत का जो अमल है उसको तेज़ किया और उन्होंने जमात इस्लामी और GDA से भी मशावरत करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बुध को जो अपोजिशन जमातों के अरकान हैं उनका एक इजलास भी उन्होंने अपने चैम्बर में इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसके बाद वो 3 नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। और राजा रियाज का कहना है कि इन तीनों नामों में टेक्नोक्रेट, सियासतदान, माहिर मईशत भी जो है वो शामिल होगा और इसमें वो हमारी कोशिश होगी कि जो ऐसे नाम दें जो कि सबको फिर काबिल कबूल हों। जबकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नून लीग ने जो नाम 5 शेयर किए हैं उसके ऊपर हमने इब्तदाई तौर पर उनका जायजा लिया है। आज हम अपने नाम उनके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद इसका तरीकाकार जो है वज़ा करके वज़ीर आज़म के साथ आज ये 5वीं बैठक होने जा रही है दोनों पार्टियों के दरमियान। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर जर्मन PTI ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट की जानिब से दायरा इख्तियार पर हतमी फैसले तक जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ट्रायल रोकने की इस्तदा भी की गई है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा PNN आसिया कौसर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि इस्तदा कर दी गई है रुकवाने की केस को हुक्म इम्तनान ना देने पर ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। दरख्वास्त में ये मतन है और पीछे चेयरमैन की तोशाखाना केस की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। तोशाखाना केस के हवाले से ये खबर सामने आई है कि चेयरमैन PTI ने कार्रवाई को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा भी कर दी गई है कि कार्रवाई को रोक दिया जाए और अदालत में ट्रायल को रोका जाए। ये इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालत के दायरा इख्तियार पर पहले फैसला होना ज़रूरी है। दरख्वास्त का मतन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। आसिया कौसर साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आसिया, बताइएगा दरख्वास्त का मतन क्या है? जी बिल्कुल, आज तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक बार सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उनकी जानिब से रजिस्टर किया गया और ट्रायल रुकवाने की अपील दायर कर दी गई है। फौरी समाअत के लिए मुतफर्रिग दरख्वास्त भी दी गई है। चेयरमैन PTI की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हुक्म में इम्तना न देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद हाईकोर्ट में अपीलें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। हाईकोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद करने का ऑर्डर करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर की जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतफर्रिग दरख्वास्त में केस 6 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की। जी ठीक है आसिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे।
इलेक्शन जीता तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है, जहां एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने की सूरत में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने कहा कि अफसरान डरते हैं कि ठीक काम भी किया तो कल नैब उनको पकड़ कर रुस्वा करेगा। कारोबारी अफराद ने नैब की वजह से सरमाया लगाना बंद कर दिया था। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नस्ला टावर केस में एंटी करप्शन अदालत ने मंजूर कादिर काका की जमानत मुस्तरद कर दी है। एंटी करप्शन हुक्काम ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज कबल मंजूर काका की अबूरी जमानत अदालत ने मंजूर की थी। वकास खान साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेंगे। जी वकास। एंटी करप्शन अदालत ने मंजूर काका जो है आज गुज़श्ता समाअत अदालत की जानिब से मंजूर काका की अबूरी जमानत जो है वो मंजूर की गई थी। आज दोबारा से इस जमानत की दरख्वास्त आज दोबारा समाअत थी, जिस पर अदालत की जानिब से मंजूर काका की जो जमानत जो है वो मंजूर करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर मंजूर काका को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसके तफ्तीशी अफसर की जानिब से मीडिया से बात करते हुए ये कहा गया बताया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंजूर कादिर काका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 26 जुलाई को अदालत ने मंजूर काका की अबूरी जमानत जो है वो मंजूर की थी। अदालत ने आज मंजूर काका की जमानत में तौसी की दरख्वास्त आज दोबारा समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने आज मंजूर काका की जमानत जो है वो मंजूर कर दी है। जमानत मंजूर के बाद एंटी करप्शन की जानिब से मंजूर काका को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है अदालत के हुक्म के बाद। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तालीमी दरसगाह है, जहाँ से अफसोसनाक स्कैंडल सामने आया है। मनशियात और नाजेबा वीडियो स्कैंडल में यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। मामला इंतहाई हसास है, जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त आए। दरख्वास्त एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तालीमी दरसगाह है, जहाँ से अफसोसनाक स्कैंडल सामने आया। मनशियात और नाजेबा वीडियो स्कैंडल में यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। मामला इंतहाई हसास है, जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में एक शहरी की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तालीमी दरसगाह है, जहाँ से अफसोसनाक स्कैंडल सामने आया है। मनशियात और नाजेबा वीडियो स्कैंडल में यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। मामला इंतहाई हसास है। पंजाब भर में मुनक्किद होने वाले मैट्रिक इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सूबे में 11,20,790 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। इस हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। नुमाइंदा PNN हैदर खरल से मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में मुनक्किद होने वाले मैट्रिक इम्तिहान की नताइज का ऐलान कर दिया गया है और सूबे में 11,20,790 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। पंजाब में मैट्रिक इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंतज़ार था बेताबी से, जिनके पेपर्स अच्छे हुए थे, और आज इस नताइज के ऐलान कर दिए गए हैं। अब पंजाब भर में मुनक्किद होने वाले मैट्रिक इम्तिहान के नताइज के ऐलान के बाद सूबे में 11,20,790 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था।